Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, we'll wait for a minute or so and then we will start. Okay, sir. Are the concepts clearer now in this chapter? There are no numericals in this chapter, okay? The important thing is concepts. Okay, and in other chapters like light and all, there are numericals and multiple things. Okay, but in this, it's a pure concept-based chapter for now. Okay. We are waiting for a minute to see if others can join and then we will start. Afternoon, sir. Good afternoon. Okay, let's get started. It's time. I think the attendance is very low today, but that's okay. We will start now. Okay, so to magnetize a nail, we wrap a copper wire around the nail, right? This was the question we had started to discuss yesterday. Okay, so the question is, should this wire be insulated or not? And what difference could that make? So anybody knows the answer? Should it be insulated or not insulated? Somebody has an idea? Should it be an insulated wire or not? बुक में कई बार सेंटेंस यूज होता है कि रैप व्हाट टाइप ऑफ वायर इंसुलेटेड वायर सो इट शुड बी इंसुलेटेड इंसुलेटेड का क्या मतलब है कि उसके ऊपर कोई रबर या प्लास्टिक की कवरिंग है राइट जैसे कि हम नॉर्मल वायर्स घर में यूज करते हैं तो वी कैन रैप दैट सो व्हाट वुड हैपन इफ इट इज नॉट इंसुलेटेड मान लीजिए इंसुलेटेड नहीं है फिर क्या हो जाएगा व्हाट्स द प्रॉब्लम Good afternoon, sir. Good afternoon. What would be the problem if it is not insulated? बताइए देखिए अगर ये इंसुलेटेड नहीं है तो ये रैपिंग का कोई फायदा ही नहीं है we will just be able to we have this wire it will touch the metal here and the current will come like this and it will go straight through this like this right so the nail will not get magnetized ठीक है
क्योंकि पूरे नेल में से ही करंट चला जाएगा, नेल मैग्नेटाइज नहीं होगी। एक बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड तो होगी, क्योंकि करंट कैरिंग वायर में एक फील्ड होती है, वो बहुत छोटी होती है। यू कांट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन विद इट, राइट? सो ये जो है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा ही नहीं। सो आंसर वी कैन राइट एज नेल विल नॉट गेट मैग्नेटाइज्ड इफ द वायर इज नॉट insulated. Okay, now Pratik made the following setup to make an electromagnet at home. Would his homemade electromagnet work? If yes, how can he make it stronger? If not, what can he do to fix the problem? Will this work? Arshita, Nupur, Priyanshi Garg, Sandhya, Shekhar Kasana, Ayan Ali. अपने वीडियोस ऑन करिए आप सब. Please switch on your cameras. Priyanshi Garg, Arshita Garg, Nupur Gupta, Shekhar Kasana. कैमरा ऑन करिए सब. Ayan Ali, you too. बताइए, will this work? Will his electromagnet work? Somebody should be able to answer this. Sir, I think there is no potential difference. Why? Sir, there is no battery or cell to maintain that potential difference. But mains is there, right? You are partially right. You are partially right. But isn't mains there? What is the problem with mains? So the potential difference is so much low. No, it's actually very high. Batteries give a very small potential difference. This is 230 volts, and a normal battery cell, okay, a normal battery cell is 1.5 volts. So this is much, much higher. What is the problem that जो घर में mains हैं इंडिया में, right? Obviously this is India, okay? They will supply AC power. Okay, there are some possibly small villages somewhere in the world जहाँ पे DC power आती है. ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं आती है, but they are like, you know, possibly a few hundred people somewhere, right? तो हमेशा पावर जो आती है ग्रिड से वो एसी पावर आती है, राइट? ये हमें पता है, घर में एसी पावर आती है, सभी को पता है, राइट? और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? बैटरी जैसी पावर चाहिए, डीसी, डायरेक्ट करंट. इसमें क्या होता है कि एक बार ये इसको मैग्नेटाइज करेगा, एक बार इसको डीमैग्नेटाइज करेगा. पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई है, बहुत हाई करंट फ्लो होगा. स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन सकता है, लेकिन क्या होगा कि मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, एंड दिस साइकिल विल बी रिपीटेड 50 times in a second. Okay, since ये इतनी फास्ट मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होगा कि you can't use it as a magnet. So what can he do to fix this? He should use a battery. What is the meaning of battery? Battery. Can somebody tell me what is a battery?
collection of cells, connected cells. I can say collection of connected cells. ओके तो ऐसे सेल्स को वो कनेक्ट करके एक बैटरी बना सकता है और बैटरी से इसको मैग्नेटाइज कर सकता है, चाहे सिंगल सेल बैटरी से भी कर सकता है, वीक मैग्नेटिज्म होगा. अंडरस्टूड? द फॉलोइंग सर्किट इज रोटेटेड. ये जो सर्किट है इसको रोटेट किया जा रहा है. व्हाट वुड यू ऑब्जर्व एंड व्हाई? गैल्वेनोमीटर में क्या हमें दिखाई देगा इज द क्वेश्चन. ये कंपास हमें दिखा दिया गया है कि कंपास ऐसे है, राइट? और ये एक सर्किट में इसको रोटेट कर रहा हूं अराउंड दिस एक्सिस. आई हैव ड्रॉन द एक्सिस एंड आल्सो द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आई हैव शोन. तो गैल्वेनोमीटर में कुछ ऑब्जर्व होगा या नहीं होगा? देयर इज नो बैटरी ऑफ कोर्स एनीवेयर. So there will be a deflection because when we will rotate that circuit, then the magnetic field will be changed. यस ओके क्योंकि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहां से जाती है कहां तक? North to south. South to north. Okay. Earth magnetic field goes from the Earth's south pole to its north pole. Yes, sir. Okay. Imaginary. हाँ, yes, right. So ये हमारा अर्थ है. तो इसमें ये मान लीजिए साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है. ठीक है. तो the magnetic field lines go like this. Okay, from south to north. ओके मैग्नेट से रिवर्स होता है इसमें, ये याद रखना चाहिए. ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं इसके बीच में से, और जब हम इसको रोटेट करेंगे तो द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोइंग थ्रू दिस विल चेंज, राइट? इसका मतलब इसके थ्रू जो फील्ड जा रही है वो चेंज हो रही है, और जब भी अमाउंट ऑफ फील्ड, टोटल अमाउंट ऑफ फील्ड इज चेंजिंग going through a circuit, what happens? There is a deflection. Okay, so the answer is there is a deflection. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. अभी सेकंड पार्ट है. What happens if the axis of the coil is rotated to align in north south direction? ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इसको ऐसे रख दिया. ये मेरा एक्सिस को डॉटेड बना देते हैं. ये एक्सिस है and it is being rotated like this. Now what will happen? Will there be a deflection? अर्शिता अपना कैमरा ऑन करिए. सारिका, शेखर, आयान, please switch on your cameras. अर्शिता, बेटा यू पार्टिसिपेट सो मच, आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, क्यों ऑफ है? सारिका, शेखर, आयान, कैमरा ऑन करिए. बताइए अब क्या होगा? विल द करंट पास और नॉट? Will there be a deflection or not?
Tell me. In the new diagram Sir, will. Hmm? it is it is parallel to the direction of Earth's magnetic field. Yes, so Sir, I don't know fully. ओके सो अब देखिए कि क्या हो रहा है. ठीक है, पैरेलल इज नॉट द रियल इश्यू. द इश्यू इज कि ऐसे जा रही हैं फील्ड लाइंस, राइट? हाउ मेनी फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग द लूप? द फील्ड लाइन शुड एक्चुअली क्रॉस द लूप. इसको आप रोटेट भी करोगे तो ये क्रॉस तो होंगी नहीं कभी भी. The number of field lines going through the loop will always be zero. What matter, जैसे इसमें ये क्रॉस करके जा रही हैं और जब हम इसको रोटेट करेंगे तो नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग आर चेंजिंग. यहाँ पे तो हमेशा ही जीरो रहेंगी नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग, इसलिए देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन. नो डिफ्लेक्शन. ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग यू अंडरस्टैंड कि अगर कोई भी लूप है, जैसे ये लूप है, इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जा रही है, राइट? और चेंज हो रही हैं तो करंट प्रोड्यूस होगा. अगर वो इसमें से जा ही नहीं रही है, जैसे कि एक रिंग है, ऐसे मैंने पेपर पे रख दिया है रिंग, और उसमें से ऐसे जा रही हैं, उसके थ्रू नहीं जा रही हैं, बस उसके ऊपर से ऐसे जा रही हैं, तो फिर वो चेंज भी होती रहे फील्ड. जब तक लूप में से नहीं जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगी. सॉरी, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगा. ओके, अंडरस्टूड? सो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लूप को रख के घुमाने से करंट जनरेट होगा, नॉर्थ साउथ में रखकर घुमाने से करंट जनरेट नहीं होगा. दिस इज अ रिजल्ट दैट यू कैन इवन रिमेंबर. ओके, magnetic induction does not involve. Okay, you have to choose the correct answer. Magnetic induction does not involve placing a magnet near a magnetic material, touching the magnet with the magnetic material, appearance of the opposite pole on the nearer side of the magnetic material facing the magnet, appearance of the like pole on the farther end of the magnetic material. क्या चीज नहीं होती है मैग्नेटिक इंडक्शन में, क्या चीज इन्वॉल्व नहीं होती है? डू यू रिमेंबर व्हाट इज magnetic induction? Somebody can tell me what is magnetic induction? आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है, 10th में ही नहीं, 8 में भी पढ़ा होगा कि क्या होता है मैग्नेटिक इंडक्शन. देखिए कोई When भी a चीज. current is induced in the coil due to the changing magnetic field, when there is a relative motion between the magnet and the coil, नहीं, this no, process is called. no, that is not magnetic induction. That is electromagnetic induction. What you told me is electromagnetic induction. Okay? मैं क्या पूछ रहा हूं? So, but in मैग्नेटिक simple इंडक्शन. induction, ठीक है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिक इंडक्शन होता है, बिल्कुल. ठीक है, तो अगर मैं मान लीजिए एक मैग्नेट किसी भी आयरन पीस के पास, यानी मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, उसके पास लेके आता हूं, राइट? तो क्या होगा, यहां पे साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा और यहां पे नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा उसमें.
जब मैं इसको हटा दूंगा मैग्नेट को तो ये पोल्स नहीं रहेंगे, जब मैं इसके पास लाऊंगा तभी इंड्यूस होगा। और इसीलिए क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, द मैग्नेटिक मटेरियल एंड द मैग्नेट। ठीक है, तो ये बिकॉज इट इंड्यूसेस ऑपोजिट पोल्स। ठीक है ना, आपने ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी पढ़ा है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है विद पॉजिटिव चार्जेस ऑन इट, आई ब्रिंग इट नियर अनदर मेटेलिक बॉल, सो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस यहाँ आ जाएंगे। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, राइट। उसी तरह से मैग्नेटिक इंडक्शन में ऑपोजिट पोल्स इंड्यूस हो जाते हैं। इसमें भी जो अट्रैक्शन होता है वो इसी वजह से होता है, इसमें भी। सो दिस इज सिमिलर टू इलेक्ट्रिक इंडक्शन। ओके, ये बिल्कुल सिंपल फिनोमिनन है, इनमें कॉम्प्लेक्सिटी कोई है ही नहीं, बेसिक है बिल्कुल, क्लास 8 स्टैंडर्ड, राइट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो एक नया कॉन्सेप्ट है जो हमने क्लास 10 में पहली बार पढ़ा है। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स है रिलेटिवली, उसका यूज जो है हम बड़ी बड़ी जनरेटर्स और इन सब चीजों में करते हैं। इट्स अ रिलेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन, राइट, कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म रिलेटेड है, वो वाली बात है वहां पे। और ये मैग्नेटिज्म अपनी दुनिया में, इलेक्ट्रिसिटी अपनी दुनिया में। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन की बात है। तो इसमें कौन सा फिनोमिन पार्ट गलत है? प्लेसिंग अ मैग्नेट नियर द मैग्नेटिक मटेरियल, वो तो करना पड़ेगा। टचिंग द मैग्नेट विद मैग्नेटिक मटेरियल, नो, वी डू नॉट टच। अगर टच कर दिया तो हम उसे मैग्नेटाइज कैसे कर रहे हैं? बाय टचिंग, नॉट बाय इंडक्शन। इंडक्शन के लिए जरूरी है कि टच ना किया जाए, राइट, तभी उसको इंडक्शन कहा जाएगा। ठीक है, appearance of opposite pole on the near side, yes. Appearance of the like pole on the other side, yes. तो ये सब तो सच है, केवल बी इज द रॉन्ग आंसर। सो आर चोजन आंसर इज बी, क्योंकि डज नॉट बताना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज, because we have to choose only one, right, single choice answer. They cross each other at the geometric center of the magnet. The field lines start from the north pole and end at the south pole of the magnet. The magnetic field lines cross each other when the like poles of two magnets are brought near each other. The magnetic field lines exist in closed loops. Which of the following is true? Sir, B. So this is the trickiest Sir, I think option. E, because sir, inside the magnet it is not true. Yes. So B is the most misleading option here. Why is it misleading? Because it says that lines start from the North Pole and end at the South Pole. ऐसा नहीं होता है. It goes inside the magnet and comes. So they exit from the North Pole and they enter from the South Pole. Okay, start की जगह क्या होना चाहिए? एग्जिट, एग्जिट सॉरी। और एंड की जगह क्या होना चाहिए? एंटर। Merge. मर्ज भी नहीं, एंटर। they are not merging with something, they are just entering the material again. okay, मर्ज का मतलब होता है दो चीजें दूर हैं और आके मिल गई। ओके, फील्ड लाइंस कभी भी मिलती नहीं है आपस में। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? क्लोज लूप बन जाता है। तो जो फाइनल करेक्ट आंसर है वो है ये डी, द मैग्नेटिक And sir, फील्ड लाइंस। tell me one thing. Are magnetic field lines parallel to each other at any point? Because in some books and some study material I have read it. They can be parallel to each other, yes. So for example, let's say I have a large magnet जिसका north pole यहाँ पे है,
I have a very large magnet जिसका साउथ पोल यहाँ पर है, ठीक है? तो क्या होगा, ये जो सेंटर में लाइंस है ना, दे विल ऑलमोस्ट बी पैरेलल, ओके? और फिजिक्स में ऑलमोस्ट इज एज गुड एज पैरेलल, राइट? सर बट अगर हम एक ही मैग्नेट को लेके एंड नॉर्थ से इमर्ज होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन साउथ में एंटर करती है, तो सर उसमें तो जो हम डायग्राम बनाते हैं तो पैरेलल नहीं शो होती ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाँ, एक ही मैग्नेट होगा तो उसमें they are not parallel outside the magnet, they are parallel inside the magnet. Inside the About magnet the they will outside. be parallel, ठीक है? लेकिन आउटसाइड द मैग्नेट पैरेलल होने के लिए आप ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं जो मैंने दिखाया, राइट? या फिर जैसे Yes, अर्थ की फील्ड लाइंस हैं, तो अर्थ की फील्ड लाइंस क्या है कि एक्चुअली आर दे पैरेलल? इफ यू विल आस्क मी, दे आर नॉट पैरेलल, बट दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल, ठीक है? अब ये जो ऑलमोस्ट है ना, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने रेज किया है, मैं आपको बता देता हूं कि जब हम फिजिक्स में बात करते हैं तो फिजिक्स और मैथ्स रिलेटेड हैं, हम ये तो देखते ही हैं, राइट? हम मैथ्स के यूज के बिना फिजिक्स को ज्यादा आगे तक नहीं पढ़ पाते, लेकिन फिजिक्स एंड मैथ्स आर नॉट सेम, ओके? दे आर नॉट सेम एक्चुअली। मैथ्स में तो वी आर स्टडिंग प्योर कॉन्सेप्ट्स, ओके? तो जैसे कि पैरेलल लाइंस आर एब्सोल्युटली पैरेलल, बट फिजिक्स में जब हम बोलते हैं ना पैरेलल, वी मीन ऑलमोस्ट पैरेलल। जैसे कि व्हाट डू वी से, सन रेज आर पैरेलल, राइट? वी से सन रेज आर पैरेलल, बोलते हैं ना ऐसा। So are they really parallel? They are almost parallel, right? मतलब दे आर सो पैरेलल कि हम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जब उनसे मेजर करेंगे दे विल बी पैरेलल, बट ऑब्वियसली दे आर नॉट पैरेलल। उसी तरीके से जब हम कहते हैं कि फील्ड लाइंस आर पैरेलल, तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल, ओके? In major part of the earth, near the poles it is not parallel, but for major part of the earth like in India they are almost parallel, in America they are almost parallel, right? In Australia they are pretty much parallel, right? Because it's nearer to equator, so they are even more parallel there, ठीक है? तो अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, कहीं ना कहीं हमें अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता है in sciences. तो सर कॉन्क्लूडेड हम लिख सकते हैं एग्जाम में दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर आप ये लिखेंगे अर्थ्स मैग्नेटिक field lines are parallel, okay? So for most of the cases this is a correct statement, for most of the cases. As I said, near the pole they are not parallel, but for most of the cases they are parallel, right? See, one thing you should remember, without the context you cannot answer the question, okay? So in general we will, you know, we will answer some things best to the best of our knowledge and based on some context. So Earth's magnetic field lines are parallel in general, right? ओके सर। Right? If somebody asks you that, somebody says that the sun is there in this, we can see sun in the day and we can see moon in the night in general, right? You will say it's a true statement, but it is, it is not true, right? Obviously you can't see sun in the night, but you can see moon in the day also on so many days, right? But in general, moon is a celestial body of the night,
while sun is the celestial body of the day, right? So in general, some sentences are true, but I can always form a question where they might be false. So you have to be very careful. You should understand when it is true. ठीक है ना? एज अ गुड फिजिक्स स्टूडेंट आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये चीज हमेशा ही सच होगी, ठीक है ना? कॉन्टेक्स्ट समझेंगे और फिर कहेंगे ये सच है. Okay, let's move on. What happens if we heat a magnetized piece of iron? What happens if we heat a magnetized piece of iron? It loses its magnetism. It gains magnetism as heat energy converts into magnetic energy. Heating has no effect on magnetism as they are fundamentally different concepts. The magnetism increases to a certain point before the metal melts, and then the magnetism is totally lost. What is true? This is an easy question. बताइए. No, but it loses its magnetism. ठीक है. जब हम एक मैग्नेटाइज्ड आयरन पीस को हीट करते हैं तो उसका मैग्नेटिज्म चला जाता है. ओके, क्योंकि उसके डोमेन्स ब्रेक डाउन. ओके, नाउ let me ask this question in a different way. There is a magnetized piece of iron. Okay, you have magnetized it by rubbing a magnet on it. Now the question is, how can you demagnetize it? You have to give me two methods. इसको डीमैग्नेटाइज करना है. दो मेथड. एक तो आपने देख ही लिया, हीट इट. व्हाट इज अनदर मेथड? These are things you have learnt in earlier classes, 7th, 8th. कैसे डीमैग्नेटाइज करेंगे? One is heating, another is simple methods. Hammering it. Okay, or hitting it, whatever you want to write. Usually you could write hammering it. Magnetized iron piece ko you hit it hard with a hammer, it will lose its magnetism after a few hits. ठीक है? A bar magnet of length 3 centimeter is cut carefully into 3 equal parts of 1 centimeter length each. ठीक है? तो ये 3 सेंटीमीटर का एक हमारे पास मैग्नेट था, उसको हमने 1 सेंटीमीटर में कट कर दिया. Then magnet A and C are the strong magnets, while magnet B is the weak magnet. Magnet A and C are weak magnets, while the magnet B is the strong magnet. The magnets marked A is the strongest, followed by B, and then the C is the weakest. Okay, they are all the same strength. Which one is true? Someone? Easy question again. Somebody should be able to answer.
Which is true in this? Sir, B. B. A and C are weak magnets. Why that should be true? You said B or D? You said B, right? Yes, sir. Why should that be true? So because I think the magnetism is reduced towards the north and the south direction there. Mm, no, it is not. Okay, I think you're confusing 2 points, right? Okay, Yes, sir, I you are think talking about magnetic magnetic field inside the magnet वाला जो concept है ना, उसमें वो Yes, sir. constant होती है बीच में और towards the ends it starts to reduce. वो magnetic field inside the magnet, लेकिन strength of the magnet तो outside the magnet होती है, right? So they are all of the same. The answer is D, but that is the correct answer. But I am surprised that why, you know, not everybody is clear about that. अच्छा, एक बात बताइए मुझे, एक मैग्नेट है ये, इसको मैंने बीच में से कट किया केयरफुली, धीरे धीरे, राइट? नाउ आई गेट 2 मैग्नेट्स. तो इसके पोल्स कहाँ होंगे इन मैग्नेट्स के? ये पूरा नॉर्थ पोल और ये पूरा साउथ पोल हो जाएगा, ऐसे होगा क्या? नो सर, दोनों के अलग अलग हो जाएंगे. तो इसके भी नॉर्थ और साउथ पोल होंगे और उसके भी. तो ये नॉर्थ ये साउथ हो जाएगा और ये क्या होगा? सर नॉर्थ ही होगा. ये नॉर्थ ये साउथ. चलिए, गुड. तो ये पार्ट तो आपको पता है, वेरी गुड. ओके, अब ये जो है, ये मैग्नेट को हमने कट कर दिया, तो देखिए ये क्या बनेगा, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ. नॉर्थ सर. दे आर ऑल आइडेंटिकल, राइट? लेकिन जब ये जुड़ा हुआ है मैग्नेट, उस समय नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ है, और बीच में मैग्नेट वीक है, यहाँ वीक है, यहाँ स्ट्रॉन्ग है. ओके, नियर द पोल्स द मैग्नेट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट? इसीलिए मान लीजिए आप एक मैग्नेट लेते हैं ऐसे, और इसके ऊपर आयरन फाइलिंग्स डाल देते हैं, राइट? तो व्हाट विल यू फाइंड? द आयरन फाइलिंग्स विल स्टिक लाइक दिस नियर द एंड. बिल्कुल एंड पे नहीं होंगी, लेकिन नियर द एंड स्टिक हो जाएंगी ऐसे, राइट? तो ये पोल्स Yes, होते हैं नियर द एंड. एग्जैक्टली एंड पे नहीं होते, नियर द एंड होते हैं, जहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड होती है आउटसाइड द मैग्नेट. एक्चुअली इनसाइड द मैग्नेट तो सेंटर में स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो मैग्नेटिज्म बाहर देखना है ना. मैग्नेट के अंदर तो हम कुछ रख नहीं सकते, सोलेनॉइड में रख सकते हैं, तो वहां पे वो हम उस चीज को स्टडी करते हैं, ठीक है? लेकिन एक रियल मैग्नेट में हम अंदर नहीं कोई चीज रख सकते. वी आर इंटरेस्टेड इन द स्ट्रेंथ आउटसाइड. वो हाईएस्ट होती है पोल्स पर. अंडरस्टूड? The force on a charged particle is in the direction of its velocity. When is it in the direction of its velocity? When it is traveling perpendicular to magnetic field, when it is traveling parallel, when it is traveling inclined to the magnetic field, or never? The force on a charged particle is in the direction of its velocity. It is traveling in the magnetic field, freely traveling in the magnetic field. कब होगी? so when it is traveling perpendicular to the magnetic field.
हाँ, तो देखिए कभी भी जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ ट्रेवलिंग चार्ज,